Hey guys, today I'm making a video purely based on Sanskrit grammar for beginners, and as you all know, this is me Sunidhi, your favorite YouTuber. I'm hoping so, and or I'm yet to become. So, this is my first session of Sanskrit grammar. I hope to get more requests for the next video on Sanskrit grammar. If you like this, I would wish to upload videos for a few chapters if at all you guys require it from me. And I would like to thank my Sanskrit teacher, Mr. Totaram, for being my helping hand and supporting me to make this video. I would say he is my inspiration for teaching Sanskrit after all. I never wanted actually to teach Sanskrit. I never had that idea, but all thanks to him. So, for the time being, let's start our today's session. Before that, if you are new to my channel, please subscribe to my channel and enjoy the video and also the videos I'll be uploading in future. So now we begin. Yeah, it's gonna be interesting. Here is your Vishay Suchi, in the sense the index. First is our Sanskrit Shabdasya Artham, meaning of Sanskrit words. Like I'll be providing you with the simple words and the meaning of those words in Hindi and English. The word will be Sanskrit. For only this video, I'm keeping it to simple as possible, so that I can gradually increase the level of learning. Then the second comes Sanskrit Anuvad Karyam. It means translation of sentences. First, in the second topic, I'll be teaching you how to translate the Sanskrit sentences to Hindi sentences. Like, I need you to understand the meaning of some few simple Sanskrit sentences, so that you will be able to grasp the sentences properly. And the third one is similar to the second topic, Sanskrit Vakya Rachanam, simple sentence formation in Sanskrit. That too means translating only, but here I'll be teaching you how to understand the Hindi sentences in Sanskrit and translate it. Then the fourth one and the last one is the Sanskrit Shabdroop. I'll be giving you tips on how to remember Shabdroop using the small Shabdroop. Like I'll be using a single Shabdroop for all the three links. We have three links in Sanskrit, that is Pulling, Strilling and Napumsakling. I'll be showing you in all the three links. So now let's begin with the first one, the Shabdroop. So from here on, I'll be conversing with you in Hindi, so that you'll understand it more properly. And other conversations and all will go on in English. हाँ, तो हम देखते हैं पहला शब्द हमारा अहम. अहम मतलब मैं, और दूसरा है त्वम. त्वम मतलब तुम. तीसरा गच्छति. गच्छति मतलब जाता है. जैसे कि आप बोलोगे वो जाता है, वो मतलब वह जाता है, तो आप बोलोगे संस्कृत में सह गच्छति. ये सह हमने क्यों यूज़ किया वो मैं आपको लास्ट वाला जो हमारा टॉपिक है शब्द रूप, वहाँ पे मैं बताऊंगी. चौथा वाला है हमारा पठति. पठति यानी कि पढ़ता है. पांचवा है खगः. खगः मतलब पक्षी या चिड़िया. और छठा है कदा मतलब कब.
ये आप अपने क्वेश्चनिंग सेंटेंसेस में यूज़ करते हो। और अगला है पतति। पतति मतलब गिरना। अगला यच्छति। यच्छति मतलब देना या देता है। जैसे कि आप बोलोगे भगवान हमें वर देता है। देता है नहीं, एक्चुअली बोलना चाहिए देते हैं, रेस्पेक्ट होना चाहिए ना, भगवान है, तो वहाँ आप यच्छति यूज़ करोगे। और अगला है हमारा गायति। गायति यानी गाता है या गाती है, दोनों में यूज़ होता है। और स्पृह्यति। स्पृह्यति मतलब इच्छा करना। और नेक्स्ट है पचति। पचति यानी कि पकाना। जैसे आप बोलोगे मेरी माँ, मेरी माँ ने, हाँ माँ खाना पकाती है, तो आप बोलोगे संस्कृत में माता भोजनम पचति, तो वहाँ पे पचति का इस्तेमाल करते हैं। और ये है गच्छामि। गच्छामि यानी कि जाता हूँ या जाती हूँ। ये आपने अगर नोटिस किया होगा तो हमने जो थर्ड वाला हमारा शब्द पढ़ा वो था गच्छति, और अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो है गच्छामि। इन दोनों में डिफरेंस पता चला होगा ना आपको। गच्छति जो है वो हम किसी अन्य व्यक्ति के लिए यूज़ करते हैं, और गच्छामि जो है वो अपने लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने बोला सह गच्छति, मतलब आप उसको, जो दूसरा इंसान है उसको बोल रहे हो आप। और गच्छामि हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? हम बोलते हैं अहम गच्छामि, यानी कि मैं जाता हूँ। तो इसका डिफरेंस पता चला ना आपको? ठीक। फिर हमारा जो लास्ट वाला है वो कुत्र। कुत्र यानी कि कहाँ। ये भी आप अपने क्वेश्चनिंग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। कर सकते हैं नहीं, आप करते हैं, वहीं पे यूज़ करना होता है। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर, और वो है अनुवाद कार्यम, ट्रांसलेशन। चलो, यहाँ पे हमारा रियल वाला शुरू होता है, मेन वीडियो। जैसे कि खाने में मेन कोर्स होता है वैसे। हाँ, अब देखते हैं पहला सेंटेंस, बालः गच्छति। बालः गच्छति का मतलब क्या है? बालः यानी कि बच्चा या बालक। गच्छति, गच्छति का मतलब मैंने अभी बोला आपको, जाता है। तो हमने यहाँ पे फिगर आउट किया कि इसका मतलब है बालक जाता है। और दूसरा वाला मृगः। मृगः क्या होता है? मैंने तो आपको मृगः नहीं बताया, तो अभी बता रही हूँ कि मृगः का मतलब होता है डीर। डीर हो गया। अब धावति, मृगः धावति। धावति क्या हुआ वो भी तो मैंने नहीं बताया, अभी बताती हूँ। धावति का मतलब है रन्स। रन्स यानी कि दौड़ता है। तो हमें यहाँ पे मिल गया। यहाँ इसका मतलब हुआ, मृगः धावति का मतलब हुआ हिरण दौड़ता है। ठीक। अब तीसरा शिशु। शिशु का मतलब भी बाल ही होता है, बालक। और क्रीडति, क्रीडति का मतलब होता है प्लेस, PLAYS, ये प्लेस होता है। तो इस पूरे सेंटेंस का मतलब है बालक खेलता है। और चौथा है हमारा कन्या हसति। यहाँ पे कन्या का मतलब है लड़की, या वो हम स्त्रीलिंग रूप में जो बोलते हैं कि स्त्री, हाँ स्त्री। और हसती का मतलब है हंसती है। तो ये हुआ स्त्री हंसती है या कन्या हंसती है। पांचवा पत्रम। अभी पत्रम का मतलब क्या है? बहुत सरल है भाई। पत्रम का मतलब है पत्ता, जो हम पेड़ पर देखते हैं।
वो है पत्रम। और ये आप देखेंगे ये है पतति। पतति हमने अभी अभी देखा कि उसका मतलब है गिरना, तो इसका पूरा मतलब हुआ पत्ता गिरता है। ठीक, अब हम देखेंगे इनके वेरीफाइड आंसर्स। पहला था बालक जाता है, दूसरा हिरण दौड़ता है, तीसरा बच्चा खेलता है, चौथा कन्या हंसती है, पांचवा पत्ता गिरता है। हो गया। अब नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। हाँ, आ गया। ये आपने अभी तक कुछ नोटिस किया क्या इन सेंटेंसेस में? वो ये कि एक सेंटेंस में अगर आप सिर्फ 2 ही वर्ड डालोगे तो भी आपका सेंटेंस का मीनिंग बन जाता है। ये सिर्फ संस्कृत में होता है और किसी भी लैंग्वेज में नहीं होता। तो इसीलिए हम ये करते हैं सॉल्व। चलो, पहला वाला खगः। खगः माने मैंने बोला वहाँ पे शब्दार्थ में दिया हुआ था मैंने। अभी कूजति का मतलब क्या है? कूजति का मतलब है चर्प्स। चर्प्स माने क्या बोलते हैं उसको? चहचहाती। आपने सुना होगा, चहचहाती है। तो हमें इसका मीनिंग मिल गया पक्षी चहचहाती है, पक्षी या चिड़िया। अब दूसरा सह। सह माने कि एक लड़का। धावती। धावती मतलब रन्स। तो हमें मिल गया सेंटेंस वह दौड़ता है। आपको लड़का मेंशन नहीं करना है, वह दौड़ता है, बस इतना लिखोगे तो हो गया आपका बस। अब तीसरा मयूरः नृत्यति। मयूरः माने मोर, हम हिंदी में बोलते हैं, और इंग्लिश में हम बोलते हैं उसको पीकॉक। पीकॉक जो हमारा राष्ट्र पक्षी है और हमारा सब फेवरेट पक्षी है। आपका है या नहीं पता नहीं, लेकिन मेरा तो मोर ही फेवरेट पक्षी है। तो ये हो गया पीकॉक। नृत्यति मतलब डांस करना, नृत्य करना। तो इसका मतलब बन गया मोर नाचता है। अब हम देखते हैं इनके वेरीफाइड आंसर्स। पक्षी कूजता है। कूजता मतलब वही चहचहाना, चर्पिंग। और दूसरा वह दौड़ता है, जैसे कि मैंने बोला। और लास्ट का मोर नाचता है। अब नेक्स्ट क्या है? गृह कार्य। बहुत इंटरेस्टिंग। अभी मैं बोलती हूँ आपको क्या करना है। आपको करना ये है कि जो मैंने यहाँ पे हेडिंग डाला है गृह कार्यम, ब्रैकेट में एक डाला है ना, उसे वैसे ही आपको हेडिंग लगा के इन सब के यहाँ पे 3 प्रश्न हैं आपके, इनको आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट देना है अपना। यही सेम हेडिंग सेम होना चाहिए, लेकिन इनका आंसर्स चाहिए मुझे, ताकि मैं आपको वेरीफाइड आंसर्स आपको दिखा सकूं। और अगर आपका गलत भी हुआ तो आप उसको करेक्ट करो। तो ये गृह कार्य करना आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एंड बहुत ही यूज़फुल भी है अगर आप ये करोगे तो। अब देखते हैं इसमें क्या है। पहला है सह पाठम पठति, सरल है। रमा गीतम गायति, ये भी ठीक। देवः लेखम लिखति, ये भी सही। अब आप पूछोगे कि भाई ये रमा और देव का मतलब क्या है? हमें तो बताया ही नहीं वहाँ पे शब्दार्थ में। बच्चों सुनो, रमा और देव
व्यक्तियों का नाम है, तो इनका आपको मतलब नहीं मिल सकता। मिल भी सकता है, लेकिन इस सेंटेंस में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो दो व्यक्तियों का नाम है। तो ये पूछना मत कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब नहीं होता। और हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड टॉपिक है हमारा वाक्य रचना। पहले हम यहाँ पे लिखा है मैंने, पहले हम सरल वाक्यों से शुरू करेंगे, उसके पश्चात थोड़े कठिन वाक्य। उसके पश्चात थोड़े कठिन वाक्य मतलब मैं कठिन वाक्य को इसी वीडियो में नहीं दिखाने वाली आपको ये मैं नेक्स्ट अपने अगले वीडियो में दिखा दूँगी। अभी ये सिर्फ एक सिंपल वीडियो है। हाँ, हम देखते हैं अभी। ये मेरी कलाकारी देखो, आप देख के कमेंट देना नीचे कि आपको पसंद आया नहीं आया, मुझे ये पता चले। ज़रूर डालना कमेंट। अभी हम थोड़ा इसको फास्ट वॉक फॉरवर्ड कर देते हैं। अच्छा, अब हम इसको करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है इसमें जो पहला सेंटेंस है वो हिंदी में दिया गया है एंड उसका आंसर है संस्कृत में। तो आपको क्या करना है, हिंदी से संस्कृत में ट्रांसलेट करना है। यही मैंने तभी बोला था आपको। तो हम करते हैं। मैं पढ़ता हूँ, हूँ में यहाँ पे चंद्र बिंदी होना चाहिए था, लेकिन हो जाएगा। मैं पढ़ता हूँ, अहम पठामी। देखो आप अपने बारे में बोल रहे हो, तो यहाँ पे आ गया आपका पठामी। अभी आप अगर यहीं पे पठ धातु के जगह पे गम धातु लगा देते तो गच्छामी हो जाता। तो ये ऐसे ही होता है। तो ये हो गया हमारा पहला वाला। अब दूसरा, तुम कहाँ जाते हो। यहाँ आ गया हमारा क्वेश्चनिंग सेंटेंस। तुम कहाँ जाते हो। त्वं कुत्र गच्छति। तुम मतलब हम एक इंसान से पूछ रहे हैं कि आप कहाँ जा रहे हो। कहाँ मैंने बोला था, वहाँ पे आपका फर्स्ट टॉपिक जो था उसमें मैंने बोला था कहाँ, कुत्र होता है। और जाते हो आप दूसरे से पूछ रहे हो तो आप गच्छति बोलोगे, गच्छामि थोड़ी बोलोगे, गच्छति बोलोगे, आप पूछोगे। तो ये भी हो गया हमारा दूसरा वाला। अब तीसरा वाला, वह मेरा छोटा भाई है। हाँ, तो यहाँ पे वह और छोटा भाई ये दोनों कनेक्टेड हैं। क्यों? क्योंकि जो वह है वो छोटा भाई है या बहन, वो वहाँ पे डिपेंड होता है कि वहाँ पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग। तो वहाँ पे आपको दिख गया पुल्लिंग, तो आपको यहाँ पे वह के जगह पे क्या डालना है, सह डालना है। वो मैं बोलूँगी क्यों डालना है बाद में। सह मेरा आप संस्कृत में मामा बोलोगे, सह मामा। छोटा भाई को हम बोलते हैं अनुज। संस्कृत में छोटे भाई को अनुज बोला जाता है। इसको याद रख लो, जो भी मैं आपको बोल रही हूँ उसे याद रखना, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। अब भाई है, वहाँ पे है के जगह पे हमने यहाँ पे अस्ति लगाया है। क्यों? क्योंकि आप जहाँ भी देखोगे अभी संस्कृत सेंटेंस में आपको दिखेगा कि देखो अभी आपको एक चित्र वर्णन करना पड़ेगा। एग्ज़ाम में देते हैं, एक चित्र देते हैं और आपको उसके बारे में 5 वाक्य लिखना पड़ता है। और मैं आपको बेट लगा के बोल सकती हूँ कि आप ज़रूर हर एक सेंटेंस पे एंड में अस्ति, संति, भवति ये सारे लगाओगे, क्योंकि ये आपको लगाना पड़ता है। जैसे कि आप हिंदी में लगाते हो, यहाँ पे जैसे हमने लगाया है छोटा भाई है, तो हम इसीलिए वहाँ पे अस्ति लगा देते हैं। सह मम अनुजः थोड़ा इनकम्प्लीट सा लगता है ना,
तो हम अस्ति लगा देते हैं वहाँ पे, तो अस्ति का कोई मतलब नहीं होता। अब चौथा सेंटेंस है हम सब खेलते हैं। हम सब, अब देखो, अहम पठामि, एग्जाम्पल ले लो, अहम पठामि मतलब मैं पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ, अहम पठामि। आवाम पठावह कब बोलते हैं? मैं और मेरी कोई सखी होगी या होगा तो हम बोलेंगे आवाम पठावह। और अगर मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं तो मैं बोलूँगी वयम पठामः। इसको आप लिख के रख लो, अहम पठामि सिंगल, आवाम पठावह आप अगर 2 लोग हैं आपके साथ, और वयम पठामः अगर आपके साथ बहुत लोग हैं तो आप यही बोलोगे। लिख के रख लो, अहम पठामि, आवाम पठावह, वयम पठामः। तो वही मोटो हमने यहाँ पे यूज़ किया है। हम सब खेलते हैं, वयम, हम सब मतलब वयम, खेलते हैं। अगर हम बोलेंगे कि मैं खेलता हूँ, नहीं, हम लेंगे मैं पढ़ता हूँ, पठामि। और हम पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं मैंने बोला, तो मैंने क्या यूज़ किया? मैंने पठामः बोला। तो यहाँ पे भी हम वही यूज़ करेंगे। खेलते हैं के लिए हम क्या बोलेंगे? क्रीडति, वो खेलता है तो सह क्रीडति। यहाँ पे खेलते हैं तो क्रीडामः। हम सब खेलते हैं तो वो हो गया क्रीडामः। ये सिर्फ अपने लिए, अपने साथ कुछ लोग बैठे हैं और सिर्फ अगर आप ही अकेले बैठे हो तो ही ये यूज़ करना है। वो वही ऐसे ही आता है, अहम पठामि, आवाम पठावह, वयम पठामः। इम्पॉर्टेंट है, लिख के रख लो। तो ये हो गया हमारा चौथा वाला। अभी 5वां वाला, अब मैं क्या करूँ? ये थोड़ा सा फ्यूचर टेंस वाला लगा ना आपको। मैंने बोला था वीडियो के स्टार्टिंग में कि एक आपको फ्यूचर टेंस वाला सेंटेंस मिलेगा, तो ये है हमारा फ्यूचर वाला सेंटेंस। अब को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं अधुना। अधुना अहम किम कुर्याम। कुर्याम जो है वो आपको फ्यूचर टेंस में यूज़ करना होता है। मतलब देखो, अब मैं क्या करूँ, आप ऐसे बोलते हो, तो अब मैं क्या करूँ, ये प्रेजेंट में नहीं होता, थोड़ा तो फ्यूचर से लिंक है ना, तो हम इसीलिए उसको कुर्याम बोलते हैं। एंड अब के लिए हम अधुना बोलेंगे। यहाँ पे देखो, क्या, अब मैं क्या, ये एक क्वेश्चनिंग सेंटेंस है, तो हमने यूज़ किया किम। इसका मतलब आपने सीखा कि किम का मतलब है क्या। तो ये भी हो गया, समझ में आया ना? अगर नहीं आया तो वीडियो रिपीट करो या फिर मुझे कमेंट में बताओ कि क्या समझ में नहीं आया, ताकि मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूं। अब नेक्स्ट वाला कुछ इंटरेस्टिंग सा होगा। हाँ, मैंने बोला था इंटरेस्टिंग। गृह कार्यम, ये देखो मैंने ब्रैकेट में 2 डाला है। इसका मतलब वो जो मैंने बोला था गृह कार्यम 1, उसका हेडिंग वैसे ही डालना है और इसका भी हेडिंग ऐसे ही डालना है, ताकि मुझे कंफ्यूज ना हो और मैं आपको सही आंसर दे पाऊँ। इसमें भी आपको सिर्फ 3 सेंटेंस दिया है मैंने, बहुत इजी है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम एक बार ऐसे देख लेते हैं कि क्या है। पहला है, मैं विद्यालय जाता हूँ। मैं, आपको पता है विद्यालय को हम संस्कृत में विद्यालयम ही बोलते हैं, विद्यालयम। जाता हूँ, ये ठीक है। तुम मेरे मित्र हो। तुम, मेरे को हम बोलेंगे मामा। मेरा, मेरे सेम होता है, मामा। मित्र हो आप कर लोगे। तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, यहाँ पे दिक्कत आई, उतनी भी बड़ी नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि हम हिंदी में चाहे पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो, हम तुम्हारा नाम क्या है ही पूछते हैं। हम पुल्लिंग के लिए अलग, स्त्रीलिंग के लिए अलग नहीं पूछते। लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं होता।
पुल्लिंग के लिए हम आगे भवतः लगा के पूछते हैं और स्त्रीलिंग के लिए हम पूछते हैं भवत्याः इनिशियल के साथ। तो नाम किम, मैंने आंसर भी बोल दिया। जिन्होंने सुन लिया होगा ग्रेट, वरना लिख लो। इससे ज़्यादा हम डिस्कस करेंगे तो पूरा आंसर बाहर आ जाएगा। और कर लेना इसको ज़रूर और कमेंट सेक्शन में डाल देना करके। अभी हम चलते हैं 4th टॉपिक, जो है संस्कृत शब्द रूप सारे लिंगों में। हाँ, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है भाई, इसको ध्यान लगा के देख लेना बस। हाँ, इसमें मैंने तत् शब्द का प्रयोग किया है पुल्लिंग में। 3 वचन है, 7 विभक्तियां हैं और आपको इसको रट्टा मार के भी एटलीस्ट आपको याद करना ही है। इसको जैसे भी हो करना ही है, इसको याद लिख लो। मैं आपको टाइम देती हूँ लिखने के लिए। पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग भी है, नपुंसकलिंग भी है, तीनों को आपको याद करना है। लेकिन इसमें एक एडवांटेज है आपको नपुंसकलिंग में, वो मैं बाद में बताती हूँ आपको। अभी पहले इसको देख लेते हैं। सह तौ ते प्रथम विभक्ति, तम तौ तान द्वितीया, तेन ताभ्याम तेभ्यः तृतीया, तस्मै ताभ्यां तेभ्यः चतुर्थी, तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः पंचमी, तस्य तयोः तेषां षष्ठी, तस्मिन् तयोः तेषु सप्तमी। अभी आपको क्या करना है कि आपको ना, अगर आप बिगिनर हो तो आपको 1 to 30 तक याद करना है। अगर नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, 1 to 15 तक तो याद करना ही है, आपको आना ही चाहिए बिगिनर्स को। हायर लेवल वालों को, जैसे कि अभी क्लास 10 और अबव, उन सबको 1 to 100 तक तो पक्का आना चाहिए। तो आप इसको भी याद कर लो। अगर आपको संख्या संस्कृत में लिखे हुए चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, मैं उसका भी आपको वीडियो बना के दे सकती हूँ। जो भी आप कमेंट सेक्शन में डालोगे, जो भी आपका रिक्वेस्ट होगा, मैं पूरे तरीके से उसको फुलफ़िल करने की क्षमता रखती हूँ। आई होप आपका ये हो गया होगा लिख के। अगर नहीं हुआ तो वीडियो को पॉज कर दो और लिख दो। अब नेक्स्ट हम जाएंगे स्त्रीलिंग में, वो भी तत् शब्द है। 3 वचन में 7 विभक्तियाँ सेम। इसमें क्या है, पूरा चेंज है। पुल्लिंग अलग, स्त्रीलिंग अलग है। यहाँ वो ऑर्डर में जाता है, प्रथमा विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक ऑर्डर में ही है ये। अब देखते हैं, इसको भी लिख लो, टाइम दे रही हूँ मैं। सा ते ताः, ताम ते ताः, तया ताभ्यां ताभिः, तस्यै ताभ्यां ताभ्यः, तस्याः ताभ्यां ताभ्यः, तस्याः तयोः तासां, तस्यां तयोः तासु। इनका आप अपने लेफ्ट साइड में एक कॉलम बना के सारे विभक्तियाँ भी लिख लो, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। हो गया होगा तो हम चलते हैं आगे। नपुंसकलिंग, वो भी तत्शब्द, 3 वचन, 7 विभक्तियाँ। और इसमें आया हमारा एडवांटेज, क्या है कि आपको नपुंसकलिंग का सब कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ प्रथमा विभक्ति देखना है, द्वितीय विभक्ति देखना है। द्वितीय भी देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ प्रथमा देख लो, क्योंकि द्वितीय में सेम रिपीट हुआ है। और तृतीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक
आपका पुल्लिंग का जो ये वचन है सेम नपुंसकलिंग में कॉपी हुआ है। तो आप अगर पुल्लिंग ठीक से याद कर लोगे, पुल्लिंग का शब्द रूप तत्शब्द का, आपको नपुंसकलिंग का ग्रेजुअली आ ही जाएगा। तो इसे भी लिख लो आप। अब बढ़ते हैं आगे। आगे नहीं बढ़ेंगे, हमारा ख़त्म हो गया यहाँ पे सेशन। आज का सेशन बस यहीं तक था और हम यहाँ से अब इंग्लिश में शुरू करेंगे। सो गाइज, do give the answers to these 6 homework questions in the comment section so that I can provide you guys with the correct answers there. Well, I will upload more such videos if you like this one. Do share this video with your friends to benefit them. Hit the like button, comment on how was the video and add your answers for the questions asked. Please do it cause it's very benefiting to you guys. And lastly, subscribe to Rendezvous with Nidhi, and so that we can keep meet you all in next video. Thanks for watching guys. See you soon.